Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay, so in the last class, we have discussed about different things. Today, we are going to continue from that. So, today I have shared you the complete PDF. So, please go through that and you will find all the things related to your act in a in one place. Okay. Now, yesterday, if I take a quick revision, yesterday we talked about board of directors. We talked about board of directors and we discussed about how the board is convened. What is basically board? How many members are there? And what is the role of the board? What are the disqualifications for being a member of a board? Uh, how members are disqualified from being a member of the board. Then we have discussed about various grounds of disqualification, uh, right from being involved in the business of the society, having any interest or taken any loan, any amount is due, you are being retained as a legal practitioner, or you are being convicted for an offense, or you are being disqualified from being a member of the society, or you're being expelled as a member, or you are absent from board meetings, etc., etc., that we have discussed yesterday about what are the grounds for disqualification and how the board is constituted. So we have discussed that there are not more than 21 board members, plus there are two additional members. But we have also talked about that if some of the board members are already functioning as a functional directors in the national cooperatives, then they should not be counted in the 21 lot. So that this is we have discussed. In addition to this, we yesterday we have also discussed about various types of general meeting and general body. What is the concept of general body? How a special meeting is convened? What is the concept of general meeting? All these things we have discussed. Today we have to continue from there. So today we are going to first of all we will discuss about the concept of chairperson, president, vice president, or the vice president. Okay. Now, there are some limitations on the office of chairperson or the vice president and the vice president. See, chairperson or president, these are same post. The name is different. In the same way, vice chairman and vice president are same post. ये सिर्फ एक अलग अलग नाम दे दिया गया है. चेयरपर्सन इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट, वाइस चेयरपर्सन इज इक्विवेलेंट टू वाइस प्रेसिडेंट. ये दोनों मतलब चेयरपर्सन अगर सोसाइटी में है देन ही विल हैव अ डेप्यूटी एज अ वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन. अगर सोसाइटी में देयर इज अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट देन ही विल हैव अ डेप्यूटी इन द नेम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ये इस तरीके से चलता है. तो देयर आर सम प्रोहिबिशंस ऑन द ऑफिस, देयर आर सम लिमिटेशंस. तो पहला लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन ये है कि इफ एनी ऑफ द बोर्ड मेंबर इज already a minister in the central or the state government, now that board member cannot be elected as a chairperson or a vice chairperson. ये आपको याद रखना है. If a sitting board member is also a sitting minister in the central or the state government, then that board member cannot be elected as the chairperson or the vice chairperson of the society. Now, this is the first limitation that you have to keep in mind, that if we have a board, in that board we have any minister as a board member, then that person is not eligible for election for the post of chairperson or vice chairperson. ये आपको याद रखना है. ठीक है कि ही इज नॉट एलिजिबल. तो अगर सरकार का कोई नॉमिनेटेड मिनिस्टर बोर्ड का हिस्सा है देन दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन और द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द सोसाइटी. पहली चीज तो ये. सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन और चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट, या अगर उसको चेयरपर्सन बनाया गया है या प्रेसिडेंट बनाया गया है, देन दैट ही हैज अ लिमिटेशन दैट ही कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 consecutive टर्म्स. तो अगर आप किसी मल्टी स्टेट सोसाइटी के इफ यू आर बीइंग इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन, देन इफ यू हैव हेल्ड दैट ऑफिस फॉर 2 consecutive टर्म्स, चाहे फुल हो या पार्ट में किया हो, नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर इलेक्शन.
ठीक है, नाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू फॉर फर्दर इलेक्शन। ठीक है, हाँ, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना टर्म कंप्लीट करने के बाद एक पूरे टर्म का आपका बीच में गैप है, तो आप री इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। लगातार 2 टर्म कंप्लीट करने के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये आपके ऊपर वो है, लिमिटेशन है। लेकिन अगर आपने एक टर्म कंप्लीट किया, बीच में गैप लिया, फिर एक टर्म कंप्लीट किया, फिर बीच में गैप लिया, फिर एक टर्म कंप्लीट किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कंप्लीट करेंगे एक के बाद एक, उसके बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये आपको याद रखना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट के टाइम पे आप ऑलरेडी चेयरपर्सन थे, और चेयरपर्सन बनने के और एक्ट के आने के बाद आप दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो जो आपका पहला वाला टर्म था उसको 1 टर्म काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि एक्ट एक्ट मान लीजिए आपकी मल्टी स्टेट सोसाइटी पहले से चली आ रही है, ये एक्ट जब कमेंस हुआ, जिस दिन से ये नया एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, उस दिन आप चेयरपर्सन थे, और आप इस एक्ट कमेंस होने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, तो जो आपका एक्ट से पहले वाला टर्म था उसको एज अ सिंगल टर्म काउंट किया जाएगा। तो आपका दूसरा टर्म जो है एक्ट आने के बाद, वो फिर कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही लिखा हुआ है कि इफ एनी मेंबर वाज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट इज अगेन इलेक्टेड आफ्टर कमेंसमेंट इज डीम्ड टू हैव हेल्ड ऑफिस 1 टर्म बिफोर दी सच इलेक्शन। तो इलेक्शन से पहले वो ऑलरेडी एक टर्म कंप्लीट कर चुका है, ये माना जाएगा, भले ही आपने फुल टर्म किया हो या पार्ट टर्म किया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं, प्रेसिडेंट सर और दैट मीन्स, सर एक सेकंड, सर ये समझ नहीं आया सर, यहाँ पे दैट मीन्स वो अब एलिजिबल नहीं है उसके बाद सेकंड टर्म के सेकेंड लिए? टर्म के लिए एलिजिबल नहीं गैप होगा, कि गैप उसका गैप पहला गैप पहला टर्म काउंट हो गया। पहला टर्म हो गया, जी हो गया। ना, ये तो हो गया लिमिटेशंस ऑन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मेंबर्स, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे कराया जाता है। एक सबसे बड़ी बात आती है कि बोर्ड मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि बोर्ड के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी एग्जिस्टिंग बोर्ड की ही होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि करेंटली हमारा एक सोसाइटी का बोर्ड है, उसमें 15 मेंबर्स हैं, और उस बोर्ड में अब लेट्स से अगले महीने इलेक्शन ड्यू है। ये जो एग्जिस्टिंग बोर्ड है, इसी का जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराएगा। तो बोर्ड मेंबर्स के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी उसी एग्जिस्टिंग बोर्ड की होती है जो उस समय पे पावर में होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्शन जो भी होता है बोर्ड का, वो सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी कि ओपन वोटिंग नहीं होती, इंडिविजुअल सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है, जिसमें सिंपल सा मतलब सीक्रेट बैलेट का होता है कि नो वन न्यू कि किसने किसको वोट दिया, ये आपका पर्सनल चॉइस होता है। तीसरी चीज, जो भी इलेक्शन आपका कंडक्ट कराया जाता है, वो एक जनरल मीटिंग जो बुलाई जाती है आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उस जनरल मीटिंग में वो इलेक्शन कराया जाता है। तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आप एनुअल जनरल मीटिंग में भी बुला सकते हैं, या अलग से आप मीटिंग अगर बुलाते हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए,